classes. Today we are going to study Social Studies, Standard 9th, Civics, Chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of the State Policy, Part 1. Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of the State Policy. In this chapter, we are going to study about the fundamental rights. What are our fundamental rights? What are our fundamental duties? And what are the directive principles of the state policy? Introduction. In the previous chapter, we have studied the Indian Constitution, preamble and important pillars as the specific characteristics. इन द लास्ट चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, उनके मेन पिलर्स, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. पिछले चैप्टर में हमने प्रियम्बल के सारा पढ़ा. इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब पढ़ेंगे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या उसके मेन फीचर्स हैं. द फर्स्ट इज अबाउट वी स्टडी इज ह्यूमन राइट्स. Human rights are those rights which are not give a person his or her basic existence but also overall development in which the society helps to construct an environment which enables him or her to grow. Human rights क्या है? Human rights वो right है which not only give a person उसको basic existence या basic necessities ही नहीं, बल्कि overall development in which the society helps to construct an environment which enables him or her to grow, जिससे वो properly grow कर पाए. In every democratic country the citizens are conferred with the basic rights. हर एक democratic country में सारे citizens को basic rights से दिए जाते हैं. Person is not discriminated on the basis of caste, can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by the society and the nation as well. A person, कोई भी citizen जो है, कोई भी इंसान, उसको किसी भी बेस पर इन राइट्स से हम दूर नहीं कर सकते. एंड कैन एक्सपीरियंस इट्स बेसिक राइट्स, जो उसकी बेसिक राइट्स हैं वो उससे मिलनी चाहिए. द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स आर एश्योर्ड बाय द सोसाइटी. और यही चीज़ उसको मिल रही, इस चीज़ का एश्योरेंस वहाँ की सोसाइटी और नेशन दोनों ही लेते हैं. The person by his birth own rights which are his or her basic rights which are known as human rights. जो पैदा होते ही आपको जो rights, basic rights आपको मिलती है वो these are known as human rights. United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day. जो यूनाइटेड नेशन की असेंबली है, जनरल असेंबली है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स ऑन 10th दिसंबर 1948 में डिक्लेयर करी थी. इसलिए 10th ऑफ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे. अगेन इट्स एन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव. फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सर्टेन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एज अ डिग्निफाइड वे. Those human rights which are included by the Constitution of India are known as the fundamental rights. ये rights तो है ही, basic rights तो हमारा birth से जो हमको मिलती है वो है. Along with that, there are many rights, बहुत सारे ऐसे rights हैं जो Constitution में include किए गए हैं. And those rights are known as the fundamental rights. These human rights proclaim the human beings to live in a dignified way. एक well deserved या well respected life रहने के लिए वो हमें help करते हैं या वो हमारे human rights हैं. For the existence of human being, the basic needs, food, clothes, shelter, education and health should be received in a dignified and a respectable way. Properly, इज्जत से मिलना चाहिए, भीख नहीं मांगनी हमें. That is our right. वो हमारा अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए. Democratic country allows its citizen to enjoy all the rights to multificate development. सारे ही डेमोक्रेटिक कंट्री जो सारे सिटीजन्स को इक्वली, सारे सिटीजन्स को राइट्स देते हैं ताकि वो अपने आप को आगे डेवलप कर सके. द स्टेट गारंटीज सच अ कंडक्टिव एनवायरमेंट where one has protection of fundamental rights
a true identity of democratic system. यहाँ क्या बोलते हैं, स्टेट गारंटी लेता है कि एवरी सिटीजन, यह जो एनवायरनमेंट है वेर इन वन हैज प्रोटेक्शन, ऐसा एनवायरनमेंट करना है कि हर एक सिटीजन उसकी फंडामेंटल राइट्स रियली ट्रू आइडेंटिटी यानी सही मायनों में उसको मिलनी चाहिए. नाउ वी स्टडी अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. The nation's stability, protection of a citizen, freedom and democracy protected through fundamental rights. Nation's stability, protection of citizens' freedom and democracy are protected through the fundamental rights. Fundamental rights के through ही हम इनको protect कर पाएंगे. There are 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and rights to the constitutional remedies. ये हमारे बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स है जो एवरी सिटीजन को मिलता है. फर्स्ट विल स्टडी इज अबाउट द राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी है, सबको एक समानता मिलनी चाहिए. राइट्स किसी भी बेस पर किसी को कम किसी को ज़्यादा कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. दैट इज नोन एज द राइट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लॉ के आगे सभी इक्वल है, चाहे वो हाई कास्ट के हैं, लो कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं. दे ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज गिवन टू देम. The fundamental right is the major foundation of all the objective rights and privileges guaranteed to Indian citizen. The fundamental rights जो है हमारी, this fundamental right, that is the right to equality, is the major foundation of all rights. सारी राइट्स का मेन फाउंडेशन क्या है? राइट टू इक्वालिटी. जो बाकी राइट्स है वो भी आपको इक्वली मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं राइट टू इक्वालिटी तो सिर्फ एक वही राइट मिल रही है, अदर राइट्स भी आपको इक्वली मिलनी चाहिए. सो इट इज द मेन फाउंडेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इट इज वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. थर्ड, इट इज एन इम्परेटिव दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया has easy access to the courts to exercise his or right to equality. यहाँ पर क्या बोलते हैं? This is an imperative that every citizen of India, it is compulsory that every citizen has the access to court or to exercise his or her right to equality. वो कोर्ट तक भी जा सकता है अगर उसको अपनी इक्वालिटी राइट्स नहीं मिल रही है. According to the right, no person shall be shown favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. Favoritism, हिंदू रिलीजन मेरा फेवरेट है तो जो भी होगा अगर मेरा उधर है तो सिर्फ हिंदुइज्म को पहला प्रेफरेंस दिया जाए, या सारी जो बेसिक फैसिलिटीज वो पहले हिंदुइज्म को दिए जाए. नो फेवरेटिज्म इज डन ओवर हियर. लॉ इज इक्वल टू ऑल, दैट इज फ्रॉम द पर्सन from the peon to the prime minister. If they are against the law, they are treated equally. Law is equal to all. Law सबके लिए सेम है. कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई केस आता है तो यू आर बीइंग ट्रीटेड एज अ सिंपल पर्सन और अ सिंपल सिटीजन ऑफ द कंट्री, चाहे वो एक पियून हो या चाहे प्राइम मिनिस्टर हो. बट इन फ्रंट ऑफ लॉ दे आर ऑल इक्वल. They are treated equally and are bound to the general court of law. However, the president and the governor have certain privileges. सिर्फ गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है उनके लिए थोड़े जो है वो थोड़े बहुत रूल्स थोड़े अलग हैं, बट दे आर नॉट टोटली डिफरेंट. ठीक है, उनके लिए थोड़े प्रिविलेजेस हैं या थोड़े चेंजेस हैं. इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली. कोई भी कंडीशन हो लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए. There should be no discrimination on the specific favoritism shown to any particular person or class. किसी भी एक पर्सन के लिए, किसी भी एक क्लास के लिए आप अपना फेवरेटिज्म, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते. Law should be equally discriminated. Every person shall have equal attendance to public place like shop, restaurants, hotels, public entertainment places, have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing ghats. ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर सारे सिटीजन्स का इक्वल राइट है. अगर हाई क्लास लोग यूज़ कर सकते हैं तो उसे लो क्लास लोग भी उतने ही राइट से यूज़ कर सकते हैं. फिर चाहे वो शॉप्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे सिनेमा है, या आप कहीं पर भी ऐसे जा रहे हो जहाँ पब्लिकली यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ. ठीक है, ऑल आर देन इक्वल फॉर ऑल.
However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribe. यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टेट हैज अ राइट, स्टेट को वो राइट है कि आप स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकते हो फॉर स्पेशली द लेडीज एंड द चिल्ड्रन एंड इवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी या सोशली या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. जो नीची जाति के लिए, उनके लिए आप कुछ और एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक राइट्स तो उनको मिलनी ही चाहिए. नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ रिस्पेक्ट टू एनी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हायर एजुकेशन. कोई भी गवर्नमेंट सर्विस पर या हायर एजुकेशन के लिए कोई भी सिटीजन में कोई भी टाइप का डिफरेंसेस नहीं होगा. ऑल सिटीजन्स विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे विल गेट इक्वालिटी. Governors, in the matter of state public services, equal opportunities have to be offered to all the citizens. However, the state is given permission to make decision regarding the required qualification for the said services. हाँ, आपको वहाँ पर आपके लिए इक्वालिटी है, बट सम रिक्वायरमेंट्स आर देयर. कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी. लाइक द स्टेट इज गिवन परमिशन टू मेक डिसीजंस. जो स्टेट है वो डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत क्या है और उस पोस्ट के लिए उनका क्वालिफिकेशन उतना है या नहीं. दैट शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड. तो ही वो उनको वो राइट दे सकते हैं. As a guarantee to the social justice and personal dignity, untouchability is abolished and its practice as any form is prohibited and punishable offense. A guarantee दिया जाता है कि कहीं पर भी आप social justice and personal dignity, personal respect, untouchability उसको totally abolish कर दिया, निकाल दिया गया है. इज अबॉलिश एंड प्रैक्टिस. अगर कोई इस चीज को फॉलो कर रहा है अभी भी, तो ही इज प्रोहिबिटेड एंड इन अ पनिशेबल ऑफेंस. उसके ऊपर कोई पनिशमेंट लग सकती है. टाइटल्स एंड एपिथेट्स विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशंस. अच्छा, टाइटल्स दिया, ओ श्रीमान, श्री, ऐसे टाइटल्स भी उन लोगों ने रिमूव कर दिए गए थे. एपिथेट्स, आपको एक बैनर या एक नाम दिया जाता है, यू आर एट अ रिस्पेक्टेबल पोस्ट, तो आपको सिर्फ उसी नाम से बुलाया जाए, बाकी सबको आप कुछ भी बोल लो, तू, ते, तू, ऐसा बोल लो, तो वो नहीं होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो बीन टेकन ओवर. नाउ दैट इज ऑल बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी. द एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर द नेम्स लाइक श्री, दीवानजी, राय बहादुर आर रिमूव्ड. जैसे मैंने बोला, ये सारे नाम, अच्छा हाई पोस्ट पर है, अच्छा दीवान जी हैं, उनका नाम तो किसी को पता ही नहीं होगा, सिर्फ दीवान जी उनका एक बैनर लग जाता है या उनको एक टाइटल मिल जाता है. नाउ दैट ऑल हैज बीन रिमूव्ड. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरियस फील्ड्स, गिव स्पेशल अवार्ड्स. हर एक फील्ड के लिए गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद स्पेशल अवार्ड्स अरेंज किए हैं. अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र is awarded in the military, and adjectives like general, major, chief marshal, field marshals are added before the names in the military services, which is not considered as a violent right to equality. जो ये अवार्ड्स हैं इक्वालिटी ब्रॉट अप करने के लिए, क्योंकि बहादुरी ज़रूरी नहीं कोई कास्ट देख के या कोई हायर स्टैंडर्ड या हायर लेवल देख कर ही है, बहादुरी किसी में भी हो सकती है. तो जो भी ऐसे बहादुरी के काम होते हैं उन सबको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र ऐसे अवार्ड से नवाजा जाता है ताकि वो एक इक्वालिटी बनी रहे. और मिलिट्री में भी जो एग्जेक्टिव्स हैं लाइक जनरल, मेजर, उनकी पोस्ट के हिसाब से उन्हें दिए जाते हैं. सो अगेन देयर कैन बी एनीवन. हो सकता है वो एकदम हाई फैमिली को बिलोंग करता हो, कोई हो सकता है जो गरीब फैमिली से आकर उसने मेहनत से वो ओहदा कमाया हो. सो नो, एवरीवेयर दैट राइट ऑफ इक्वालिटी विल बी देयर. The aim of right is to inform the equality society and thereby establish the rule of law in India. इक्वालिटी का मेन है जो रूल है लॉ का, वो बनाए रखना है, वो सबके लिए सेम ही रखना है.
To provide specific services to different types of groups or class, there can be different types of provisions under law. थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, प्रोविजंस हो सकते हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंट लॉज. हाँ, यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें वो लॉज से थोड़े उसमें चेंजेस हैं. देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, वुमेन्स, juveniles, that the principles of equal pay or equal work is also the part of the article. यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एजेंसीज हैं, जो इंश्योरेंस एजेंसीज जो काम कर रहे हैं, इन सब को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको पे भी इक्वल ही मिलना चाहिए. अगर एक टीचर एक स्कूल में 5 क्लासेस पढ़ा रही है, एक स्कूल दूसरी टीचर भी वही काम कर रही है, लेकिन अगर इफ देयर इज अ सैलरी डिफरेंस तो दैट इज रॉन्ग. यहाँ पर इक्वालिटी नहीं हुई. जितना काम एक टीचर कर रही है तो दूसरा टीचर भी उतना ही काम कर रहा है. सो ही इज ऑल्सो वेल रिजर्व्ड या वेल डिजर्व्ड पर्सन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सैलरी. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल. तो जो भी एक ओहदे पे काम कर रहे हैं उन सबकी सैलरी जहाँ तक हो सके सेम ही होनी चाहिए. Next is the right to freedom. The Constitution of India provides the citizen of India 6 types of freedom. Right of freedom में ही आपको 6 तरह की फ्रीडम मिलती है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी आप बोलना चाहें, वो जो भी आप अपने अंदर थॉट्स है वो उनको आप ला सकते हो. टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, आराम से कहीं भी विदाउट आर्म्स, यानी जरूरी नहीं है कि आप हथियार ही रखो अपने पास. आपको इतनी सिक्योरिटी स्टेट दे रहा है कि यू कैन लिव पीसफुली विदाउट आर्म्स. टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, आपने देखे होगा फैक्ट्रीज में यूनियंस बनते हैं. हाँ, वो आप बना सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो. यू आर फ्री टू डू दैट until they are harmful. To move freely throughout the territory of India, आप इंडिया में कहीं पर भी घूम फिर सकते हो. To reside and settle in any part of the territory of India, कहीं भी आप रिसाइड कर सकते हो. आप अभी बड़ौदा में रह रहे हो, कुछ बिजनेस यहाँ पर नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस बॉम्बे में चल रहा है, यू कैन ईजिली गो एंड शिफ्ट ओवर देयर. जो फिल्म स्टार्स हैं सबके सब उधर के नहीं हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, बट ड्यू टू द वर्क, ड्यू टू द जॉब दे आर स्टेइंग देयर. सो उनको ये पूरी फ्रीडम, आप इंडिया में कहीं पर भी जाकर रह सकते हो. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो. वेदर यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू वांट टू बिकम अ टीचर, you have that freedom. These rights are utmost importance for all overall development of the personality and expressions of Indian citizen. ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, पर आपको ज़बरदस्ती कोई टीचर बनाने पर लग जाए तो वो काम नहीं करेगा. सो इट इज द ऑलमोस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें आपका आ जाता है. फॉर द हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी और हेल्दी लाइफस्टाइल, उधर आपको अगर आप खुशी से काम कर रहे हो तो आप हार्मनी से, यानी भाईचारे के साथ जहाँ पर भी काम कर रहे हो सबके साथ आप वहाँ वैसे ही काम करोगे. एंड यू विल बी हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम एटॉर्मसली और इररिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको ये फ्रीडम दिया गया, इसका ये मतलब नहीं आप उसको बिना किसी हिसाब के यूज़ करो. यू हैव टू बी एटॉर्मस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको नहीं, यू आर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप एक प्रोफेशन ले रहे हो, आप एक जगह रहने जा रहे हो, तो यू हैव टू कैरी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स दैट. द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट द राइट्स टू फ्रीडम इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी. स्टेट आप पर कंट्रोल कर सकता है अगर आपकी जो राइट है, राइट टू फ्रीडम का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं. This has been clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised. ये चीज़ भी Constitution में clearly mention की गई है. And it is also said that it has been stated in the Constitution how the rights are. कितनी rights, कितना freedom आपको किसको देना है, किस profession में कितना freedom होना चाहिए. All these are also been given in the Constitution. Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. They can express either orally, verbally or through gestures. आप orally किसी को अपना feelings बता सकते हो, या आपको कोई law समझ में नहीं आ रहा है उसको related आपको कुछ भी बोलना है, you are free to say.
यू आर फ्री टू एक्सप्रेस व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू। आपके अंदर उस चीज को लेकर क्या है, डाउट्स है, आप इसको क्लियरली बोलकर निकाल सकते हो, ओरली, वर्बली और इन जेस्टर्स, एक्शंस के साथ या विद द पोस्टर्स यू कैन एक्सप्रेस इट। But that is not to provide the exercising this right in unlimited and a sustained manner. Again the same thing, आपको ये rights दी गई है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप उसको बहुत अनलिमिटेडली यूज अप ना करो। आपके पास राइट ऑफ स्पीच है, इसका ये मतलब नहीं आप किसी को कुछ भी बोल दो, दैट इज नॉट देयर। Certain necessary control and limitations have been stated in the constitution. इसलिए कुछ जो है उन पर रोक टोक भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि एक हद के बाद इसको यहाँ पर स्टॉप देना है। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो स्टेट के पास वो पावर है कि वो उस लॉ पर एक रोक लगा सके कि इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। State for the amicable relation with the foreign nations, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, dementation and provoking violence for crime. Again यहाँ पर ये सारा वही दिया है कि maintaining the unity and integrity of India, unity बनाए रखनी है इंडिया में हमें, safety of the state, जो state की safety के लिए ज़रूरी है, for amicable relation, जो अच्छे relations हैं हमारे foreign nations के साथ, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, पब्लिक पीस कहीं पर भी हार्म नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज एंड सेफ्टी, कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सेफ्टी को लेके, मॉरलिटी, डिसिप्लिन, ये सब भी वहाँ पर होना चाहिए, कंटेम्प्ट टू कोर्ट, डिफेमेशन, डिफेमेशन यानी डिफेमेशन का मीनिंग होता है मानहानि का दावा। कई बार अगर आप कोई गलत काम करते हो एंड द पीपल आर बीन मेंटली और मेंटली वो लोग आपकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, दे आर हैविंग मेंटल स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर आपकी वजह से उन पर आता है, तो आप पर मानहानि का दावा वो कर सकते हैं। एंड प्रोवोकिंग इज अफसोसजनक कोई चीज़ ऐसी हो या कोई ऐसा क्राइम हो जाता है एंड इफ़ यू आर बीन रियली उस चीज़ के लिए आपको बहुत अफसोस हो रहा है, so there are some things to be done by the state to stop that. It is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate. Judiciary decide करेगा कि कितना ये होना चाहिए, कितना ये सही है और कितना होना चाहिए। The purpose behind the freedom of press through which the ideas and opinions put forth for the public welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right to expression. जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि पेपर में वो लोग जो लिखते हैं तो उनके पास वो राइट है, उसके लिए अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रूल नहीं दिया हुआ है, बट इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द राइट टू एक्सप्रेशन। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का आपने पेपर पढ़ा होगा, लोगों क्या सोचते हैं उस चीज़ को भी वो पेपर में दे सकते हैं, बट अगेन सम लिमिटेशंस आर देयर, इट शुड नॉट हार्म द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। The latest amendment of 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education for children between 6 to 14 years. 2009 में जो latest amendment या latest changes जो आए थे, that was free and compulsory education, primary education for the children between 6 to 14 years of age. If a person is not convicted for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed by the law cannot be given the punishment more than once. अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, if a person is not convinced for crime, आप किसी को क्राइम के लिए कन्विंस नहीं कर सकते, then he cannot be sentenced to punished, वो पनिशमेंट के उसमें आएगा ही नहीं, और मोर पनिशेबल देन वन प्रिस्क्राइब्ड, अगर उसको एक बार पनिशमेंट मिल रहा है, जो भी लॉ उसको पनिशमेंट दे रहा है, ना ही आप उसमें कुछ बढ़ा सकते हो, ना ही उसको आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट पनिशमेंट मोर देन वन टाइम, एक बार मिल गई ठीक है, आप उसको वापस ऐसा नहीं करोगे कि वो फिर से गलती कर रहा है उसको फिर से वही पनिशमेंट दे दो। कैन नॉट बी गिवन टू द सेम कन्विक्टेड पर्सन, उसी बंदे को वही सेम पनिशमेंट नहीं मिल सकती। No individual can be deprived of his life and liberty except the procedure of law. किसी को भी आप उनकी लाइफ और लिबर्टी से दूर नहीं रख सकते एक्सेप्ट द प्रोसीजर ऑफ लॉ। अगर लॉ में कुछ प्रोसीजर जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको रुकना पड़ेगा।
कई बार आपने देखा होगा, टीवीज में भी कई बार दिखाते हैं कि अगर कोई केस चल रहा था एंड यू हैव बीन इन्वॉल्व, आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो आपको पुलिस वाले पहले ही बोलते हैं कि आप हमें बिना बताए बाहर नहीं जा सकते फॉर सम टाइम टिल दैट केस इज गोइंग ऑन। कुछ टाइम के लिए आपकी लिबर्टी पे थोड़ी रोक टोक आ जाती है। नो वन कैन अरेस्ट विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो उनको रीजन देना पड़ेगा आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड इफ अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू डिफाइन हिमसेल्फ, एंड द पर्सन जो अरेस्ट हुआ उसको अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। जरूरी नहीं कि जो पुलिस वाले लॉयर दे वही आपको, अगर आपका कोई पहचान में है एंड इफ यू ट्रस्ट दैट पर्सन मोर, तो you can hire your own lawyer. An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours. अगर कोई ऐसा सीरियस क्राइम है तो मैजिस्ट्रेट के सामने उनको 24 आवर्स के अंदर, नियरेस्ट 24 आवर्स में उनको वहाँ पर पेश करना है। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट। विदाउट उनकी परमिशन के आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को कस्टडी में नहीं रख सकते until he has been proved that he is wrong. As per the Prohibition Act, the person under the arrest will not be applicable to the aforesaid matter. जो ऐसा नहीं कि जो मैटर चल रहा है उसको कहीं ना कहीं आप उससे लिंक करके उसको भी यहीं बिठा दो। नो, अफॉरेस्टेड जो पहले से मैटर चल रहा है उसमें आप किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। Preventive detention. If the state anticipates any criminal deed or activity from any person, then has the precautionary measure that person can be detained by the state, जिसको हम बोलते हैं ना तड़ी पार कर देना, तो that is called as the preventive detention। कुछ वक्त के लिए उसको अपने स्टेट से वो तड़ी पार कर सकता है। Under a preventive detention act, the purpose of this act is not to punish a convict, punish नहीं करना है, but to stop him, उसको एक वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने से रोकना है अगेंस्ट द स्टेट। अगर वो स्टेट को हार्म कर रहा है, वो अथॉरिटीज को हार्म कर रहा है, उसके एक्शन अगर किसी स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे तो वो कुछ वक्त के लिए स्टेट उसको अपने स्टेट से अलग कर सकता है। सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन 3 months। 3 महीने से ज़्यादा उसको आप डिटेन कर सकते हो। द डिटेंटेशन और एन ऑर्डर कैन बी कैंसल्ड बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। अगर कुछ ऐसा आता है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर हो तो ही उसका डिटेंशन कैंसल हो सकता है। इट कैन बी कैंसल्ड ओनली विद द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन। अच्छा, वो अथॉरिटी स्टेट के पास है कि आप उसको कितने टाइम के लिए वहाँ से तड़ी पार करना चाहते हो। नेक्स्ट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी एनी पर्सन डज नॉट सफर एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द अदर पर्सन एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इज एस्टैब्लिश। किसी का भी मिसयूज ना हो, किसी को भी एक्सप्लॉइट हम ना करें, ये हमें देखना है ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी बन सके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रैगरी, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। ड्रैगरी क्या होता है? ड्रैगरी होता है कि जो ड्रगेरी होता है वो हार्ड वर्क ऑन द डोंकीज वर्क, जैसे बोलते हैं ना गधा मजूरी करवाना, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमंस को बेचना, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया था कि छोटे बच्चों को बेच दिया जा रहा है। बड़ी दूसरी सिटीज़ में, गाँव में गरीब लोग हैं, उनके पास खाने को नहीं, अच्छा आप लोग का काम हो जाएगा, बच्चा वहाँ पे काम करेगा, आपको पगार मिलेगा, आपका भी फाइनेंशियल अच्छा हो। इसी तरह वो लोग वहाँ पर बच्चों को बेच देते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ड्रैगरी मतलब गधों की तरह उनके पास से काम करवाना। स्लेवरी, मजूरी, कहीं ना कहीं उनको नौकर बना के रखना। एंड फोर्स्ड लेबर आर बैंड। आप किसी के पास से फोर्सली काम नहीं करवा सकते, इन सब चीज़ों पर बैंड है। द वायलेशन ऑफ द राइट इज पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल है अगर किसी को पता चले कि अगर इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ वहाँ पर हो रही है तो दैट पर्सन इज अंडर अ पनिशेबल ऑफेंस। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। बच्चों को और औरतों को बेचा जाता है इलीगली, उनको यहाँ से वहाँ ट्रैफिकिंग किया जाता है उनका। फोर्स्ड लेबर और इम्पोज्ड स्लेवरी।
वर्क विदाउट पे एंड ओल्ड ड्रगजरी, काम करते पर पैसे नहीं देते। हाँ, वो पहले का हिसाब बाकी है, वो इसके पापा ने लोन लिया था, ये उसमें सेटलमेंट कर रहा है। नो, वो मेहनत कर रहा है, उसको उसके मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट, इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए राइट बनाई गई थी। टू टेक द वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेस, फोर्स टू इम्पोज लेबर इज एन पनिशेबल एक्ट। आप उसको जितना काम उसके पास ले रहे हो उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या टोटली आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, या जितना काम कर रहे हो उसके मुकाबले कम पैसे दे रहे हो, एंड यू हैव बीन फोर्सिंग देम टू वर्क देयर, you are coming under a punishable act. Any child under the age of 14 cannot be made work in the factory, mines or any dangerous profession. छोटे बच्चे एज ऑफ 14 से भी कम की उम्र वाले बच्चे, उनको आप किसी भी फैक्ट्री में, माइंस में, या कोई भी ऐसा डेंजरस प्रोफेशन है, गैरेज है, होटल है, और कैनॉट बी एम्प्लॉयड एज एन हाउस होल्ड सर्वेंट बिलो द एज ऑफ 14. No child is allowed to do the work. Under the Prohibition Act of Child Labor Act, all this punishable offence, prohibition यानी रोकना, चाइल्ड लेबर एक्ट को रोकने का, इस एक्ट के अंडर इन सब चीज़ों को वो लोग पनिशेबल ऑफेंस समझते हैं। अगर इनमें से जैसे भाई छोटा 14 साल का बच्चा भी नहीं है, ही इज़ बीन वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड दे कम टू नो, तो वो उनके लिए पनिशेबल एक्ट बन जाएगा। Mandatory services can be fought from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any fields, irrespective to the religion, gender, caste or class, without any remuneration. यहाँ पर वो लोग क्या बोलते हैं कि मैंडेटरी सर्विस, जो कंपल्सरी सर्विसेज है, कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। अगर पब्लिक का भला हो रहा है, उसमें अगर आप किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विस इन एनी फील्ड, इररिस्पेक्टिव टू द रिलीजन, जेंडर, कास्ट, तो दैट इज अंडर, एंड दैट इज कास्ट और क्लास विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मनी देना, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो तो उसके बदले यू हैव टू पे देम। Remuneration without paying them, that is the money that you have to pay for them. कोई भी सर्विस करता है, जॉब कर रहा, मिलिट्री सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज, they are being paid for that. Next is about the right for the freedom religion. Any citizen of India can follow any religion of his choice and can promote and propagate the same mentioned in the provision of the Constitution of India. Again, ये भी हमारे Constitution में पहले से you are free to choose your own religion, but this right has enjoyed within the permissible limits so that it does not affect the freedom of the public administration. Again, उसके लिए भी कुछ limits है, आपको राइट्स दे रहे हैं, आपको हक दे रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स भी साथ में आ रहे हैं ताकि आप किसी को भी हर्ट ऑन ना कर सको। मॉरलिटी एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, द रिलीजियस गैदरिंग, ऑफरिंग्स ऑफ प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। आप गैदरिंग्स करते हो, ऑफरिंग्स, अगर आप कुछ भी ऐसा गेट टुगेदर करते हो, रिलीजियस गेट टुगेदर, वो इस सब में नहीं आता है। दैट इज अगेन अप टू यू। द स्टेट ऑफ द इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, और द इंडियन स्टेट इज not run as per the principles of any religion or sect. The state of India, जो इंडिया है, वो पर्टिकुलर कोई भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। The state cannot interfere in the religious matter of religious beliefs of any group. स्टेट किसी भी रिलीजियस मामले में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। The religious groups have been given the freedom to establish any religious organization and can manage and administer their own religious and philosophic एम्स। वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं, किस तरह उनको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, किस तरह वो उसको और आगे लेके जाना चाहते हैं, दैट इज अगेन अप टू स्टेट। उसमें कुछ भी नहीं बोलेगा। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स कलेक्टेड थ्रू द पब्लिक टैक्सेस और पब्लिक फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन एंड सेक्ट। जो फंड कलेक्ट होता है पब्लिक टैक्सेस के थ्रू या पब्लिक फंड्स के थ्रू, तो गवर्नमेंट जो है वो इस अमाउंट को किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन या सेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकती, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकती।
वो टैक्सेस है वो पूरी कंट्री के लिए ही यूज ऑन होगा. The educational institution running on government grants cannot impart religious education or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के ग्रांट पे चलती है, जिनको गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करती है, वहाँ पर जो एजुकेशन है उस वहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स को कंपलसरी आप उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस रिलीजियस एक्ट या इस रिलीजियस मीट. Next is about the cultural and the educational right. People of various religion, various language and various cultures live in India. हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. The people of India have the right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity. Or any educational institute which rely on government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reason. इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लोग रहते हैं इंडिया में, दे हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज, आप अपने घर में तो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र में रहते हो आपको सिर्फ कंपलसरी मराठी बोलनी है या वहाँ की हिंदी बोलनी है. आप तमिल हो, आप तमिल बोल सकते हो. आप अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को अपने अंदर रख सकते हो. उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है आपको. स्पेशली द एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच रिलाय, जो टोटली गवर्नमेंट ग्रांट्स पे काम कर रहे हैं, उधर भी ऐसा कोई नहीं है कि आप के पर्टिकुलरली कोई एक कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर कोई भी एडमिशन आप डिनाई कर सको कि नहीं नहीं ये कास्ट वाले इधर नहीं चलेंगे, ये रिलीजन इधर नहीं चलेगा. नो अदर रीजन शुड बी गिवन फॉर दिस. If any individual appeals to vote on the grounds of religion, caste or religion, then it is considered as a malpractice as per the Act of 123(3). If any individual appeals to vote on the grounds of religion, religion के बेस पर वो वोट मांग रहे हैं, कास्ट का, लैंग्वेज के, तो दैट इज अ मैल प्रैक्टिस, दैट इज अ बैड प्रैक्टिस गोइंग ऑन. Any of the state can frame a law and provide the right to its citizen to form and manage any educational institute based on the cultural or linguistic minority. यहाँ क्या बोलते हैं कि स्टेट कैन फ्रेम अ लॉ, वो एक लॉ ऐसा बना सकते हैं एंड प्रोवाइड द राइट टू द सिटीजन, सिटीजन को ऐसी राइट दे सकते हैं टू फॉर्म एंड मैनेज एनी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आप मैनेज करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट. तो स्टेट उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स देने के लिए. और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट लेवल फंड टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंड्स भी वो प्रोवाइड करने से मना नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑन द डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज डिफरेंस पे, रिलीजनल डिफरेंस पे आपको ग्रांट्स नहीं मिलती है, ऐसा नहीं हो सकता. It is the state desire to take over the confiscate and prosperity of minority. हर एक स्टेट चाहेगा कि उनके जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, दोनों इक्वली उस पर चले. Institute it can do so only after giving the proper returns. In this way, the important provision in the construct of educational institute have been made in the constitution. इस तरह कई जगह एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस को भी हेल्प किया जा रहा है. Right to constitutional remedies. No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, then there remain no meaning of freedom of right. आपने कितने भी laws बना लिए, कितने भी rules बना लिए, ठीक है, मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स, बट इफ दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, अगर वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है. Therefore, provision has to be made in the Constitution for the implementation of these rights, and under it, a right in Supreme Court can be made for the violation of the fundamental rights. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि therefore a provision has been made in कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लिए भी एक प्रोविजन, एक रूल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. जो राइट्स हम लोग की है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है.
अंडर इट, और राइट इन सुप्रीम कोर्ट, अगर नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए बोलने जा सकते हो. The right can be accepted as the right to constitutional remedies. The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights. तो यहाँ पर जो है वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही अहम किरदार निभाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन में. And for this, if it is court finds it necessary, then it can give orders, instructions or decree. तो अगर उनको ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए तो दे कैन गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू देम. द अपेक्स कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. द अपेक्स कोर्ट यानी जो टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट हमारी, उनके पास ये पावर्स है, ये पावर्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं. नोबडी कैन अपोज इट. इफ एनी पर्सन पुट्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी स्टेट और वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स राइट. तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता है. इफ एनी पर्सन कंप्लेन्स अगेन, अगर कोई पर्सन कंप्लेन करता है कि हमारे स्टेट में हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं, हमको वो प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, देन सुप्रीम कोर्ट कैन डू इट्स एक्शन. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज कंसिडर्ड द राइट एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. सोल यानी आत्मा, इसके बिना सारे जो राइट्स हैं वो सब ऐसे ही है. The parliament can hand over the powers of giving such an order to any of the court. If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or in congruence to it, then Supreme Court can stop the state. अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई लॉज फ्रेम करे हैं जो वायोलेट हो रहे हैं, जो प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो रहे हैं, और इट इज नॉट इन द कॉन्ग्रेंस ऑफ इट, तो सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप द स्टेट फ्रॉम डूइंग दिस. Thus, the right provides an opportunity to any of the citizen to approach the court for the violation of fundamental rights. तो इससे हर एक सिटीजन को एक राइट मिलती है कि आपके साथ अगर कोई भी आपका राइट नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो टू द कोर्ट. The Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizen. These rights are given against the government. ये गवर्नमेंट ने दिए हैं आपको. The fundamental rights are applicable to all the citizens of the times, but can be suspended during the times of emergency. वैसे तो आपके पास सारे राइट्स हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी है स्टेट में, कंट्री में, तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए वो फंडामेंटल राइट्स आपको ना दिए जाए. Any state cannot form any laws which they can take away the fundamental rights of the citizen. कोई भी स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिससे आपको फंडामेंटल राइट्स ना मिले. So friends, here we end up with part 1. Thank you. In last part we have studied about the fundamental rights. In this session we are going to study about the fundamental duties. आपको राइट्स, आपको अधिकार तो मिल गए, उसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है एज पर द सिटीजन ऑफ द कंट्री. द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज सिंस एंशिएंट टाइम. जस्ट एज द सिटीजन आर गिवन द वेरियस फंडामेंटल राइट्स, various fundamental duties were also incorporated by the Constitution Amendment in 1976. जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए, साथ ही साथ उसके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अलॉट की हुई है. दैट वाज मेड इन द अमेंडमेंट 1976. द फंडामेंटल ड्यूटी एम टू इनकलकेट लव फॉर द नेशन, नेशनल इंटीग्रिटी, वेरियस हाई आइडियाज एंड वैल्यू अवेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन्स, thereby helping in developing the nation. यहाँ पर क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल ड्यूटी एम, जो मेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो एम है, यहाँ जो गोल है वो क्या है, टू इनकलकेट अपने सिटीजन्स में, लोगों के अंदर नेशन के लिए लव, प्यार बढ़ाना, नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल लेवल पे हमारी जो देशभक्ति है वो आगे बढ़ाना, नेशन के लिए कुछ करना है वो सोच को आगे बढ़ाना, various high ideals and value awareness among the citizens, thereby helping the developing of the nation, जिससे हमारे नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प आउट हो सकता है. Every citizen of India should contribute towards the protection of the nation's unity, integrity and sovereignty. हर एक सिटीजन का ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल यूनिटी, जो हमारे देश की यूनिटी है, इंटेग्रिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन है,
उस चीज़ को हम आगे हमेशा लेकर चलें, so that there remains peace, security, communal, harmonial and accord, ताकि हमारे देश में जो है पीस बना रहे, शांति बनी रहे, सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी यानी कम्युनिटीज़ में भी आपस में कोई भेदभाव नहीं, झगड़ा नहीं, हार्मनी, भाईचारे से आराम से रह सके. The fundamental duties are given on the first page of the textbook. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. ये हमारी ड्यूटीज़ हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, उनके आइडियल्स का, उनके इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विद इंस्पायर्ड एंड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जो हमारी नेशनल स्ट्रगल के टाइम के जो लीडर्स थे, उनकी सोच, उनकी जो आइडियाज़ थी, उनको इतना रिस्पेक्ट करना, उनको फॉलो अप करना. टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी बनी रहे, हमारे इंडिया की यूनिटी बनी रहे, ये भी हमारी एक ड्यूटी है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. अपनी कंट्री का बचाव करना, डिफेंड करना, एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो. आपने आर्मी वालों को देखा होगा, जब भी उनको कॉल आता है वो फटाफट किधर भी होंगे दे विल बी बैक टू देयर ड्यूटी. तो वो सिर्फ हमारे सोल्जर्स की ड्यूटी नहीं है, वो हमारी भी ड्यूटी है. कभी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें उस वक्त अपने बारे में नहीं, हमें देश के बारे में सोचना चाहिए. टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transisting religion, linguistic, regional, sectoral diversities, to remove the practice of destroying and dignity of the women. To promote harmony, भाईचारा बनाए रखना है. In the spirit of common brotherhood, सब एक समान है, सबके साथ भाईचारे से रहना है. Amongst all the people of India, सारे ही लोगों के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के, अपने रिलीजन के साथ, सारे ही रिलीजन या सारे ही लोग जो इंडिया में रहते हैं. Transcending religious, linguistic and regional or sectoral diversities. इन सब चीज़ों को हटक, कोई डाइवर्सिटीज़ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ये अलग लैंग्वेज वाला है, ये अलग रिलीजन वाला है, नहीं, सबके साथ इक्वल भाईचारे के साथ हमें रहना है. टू रिनाउंस प्रैक्टिस और डिट्रॉइटिंग टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. अगर वुमेन की डिग्निटी, वुमेन की रिस्पेक्ट हो, उस चीज़ के लिए भी हमें देखना है कि कोई उनकी रिस्पेक्ट को हार्म ना करे. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर. जो हमारे कल्चर के जो रिच प्रिजर्व्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको भी हम आगे लेकर चलें. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स. हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट भी करना है और आगे इम्प्रूव भी करना है. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. नए रिफॉर्म क्या ला सकते हैं जिससे हम अपने देश को और आगे और बेहतर बना सकें. टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व द वायलेंस. जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बचाव करना है, उन्हें बचाना है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है. एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, मारपीट से जितना हो सके दूर रहना है. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल्स ऑफ द एंडिवेशन एंड अचीवमेंट्स. जो ये है स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, एक्सीलेंस की तरफ हमें अपने आप को ले जाना इन ऑल द स्फीयर्स, चाहे वो साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, और हमको कलेक्टिवली सबको मिलकर ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है ताकि हमारे नेशन को हम और आगे अचीवमेंट्स दें और आगे हम उनको ले जाएं. Who is a parent or guardian to provide the opportunities for education to his child, or as in case may be the ward between the age of 6 and 14 years. पेरेंट और द गार्डियन, ये उनके लिए है कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी है अपने बच्चे को कि एटलीस्ट वो बेसिक एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 एटलीस्ट वो बेसिक एजुकेशन उसको मिल सके. 6 January is declared, is celebrated as the Fundamental Duties Day. 6 January उसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं इन इंडिया.
Of all the duties, some duties are backed by the law. The person violating it can be sentenced. जो भी इन ड्यूटीज को वायलेट करता है या उनको फॉलोअप नहीं करता है, they can be sentenced, they can be punished. A teacher should make efforts so that the students follow the duties and they become aware, conscious. ये एक टीचर की ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट्स को ऐसी उनकी एजुकेशन दे ताकि वो अपने ड्यूटीज़ और अपनी राइट्स को बराबर समझ सके, and they become aware and conscious about what is right and what is wrong going on in the world. It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, drug lead, child labor, women exploitation, dowry, female felicitate, ill customs, superstitions. तो being a responsible citizen, एक नागरिक, जागरूक नागरिक बनकर हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो वेरियस सोशल इवल्स, जो गलत चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, हम उनको रोक सकें. जैसे कि अनटचेबिलिटी है, भेदभाव है, नहीं ये तो अछूत लोग हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम रोक सकें. चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चों के पास से काम करवा रहे हैं, वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, डाउरी, दहेज नहीं मिलता है तो बेचारी लड़कियों को कितना कुछ सहना पड़ता है, फीमेल पॉलिसाइड, फीमेल बच्चों को पेट में ही मार देना है, इल कस्टम्स, ऐसे सुपरस्टिशंस, ये सब चीज़ों को हमें जितना हो सके एक जागरूक नागरिक बनकर इन चीज़ों को हमें रोकना है. These duties are directive in the conveying that what a sensible and aware citizen must do. तो ये जो बातें ये आपको बताती है एक अवेयर सिटीजन, एक जागरूक नागरिक जो है उसे क्या करना चाहिए. If the citizen propagates the importance and utilization of fundamental duties, then future citizens develop the feeling of national responsibility, international brotherhood, just and exploitation free society. अगर हर नागरिक इस सोच को लेकर आगे बढ़ेगा तो जो हमारा नेशन है जो डेवलप कर रहा है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, ये मेरा भी फ़र्ज़ है. अगर किसी की हेल्प हो सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी उनकी हेल्प करे, अगर हम भी कर सकते तो हमें आगे आकर करना चाहिए. इससे क्या होगा कि जो हमारा इंटरनेशनल ब्रदरहुड है, जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा भाईचारा बना रहेगा, एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी बनाने में हम आगे बढ़ पाएंगे. नाउ द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ है उनके डायरेक्ट प्रिंसिपल्स क्या है. डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The objective of the director principle of the state policy is to guide the present and future. जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर आने वाला है उसको हम प्रॉपर गाइडेंस दे सकें. Central and the state governments in the policy making in various policy related field. These principles are directive. The state is not bound to fulfill them. ये एक डायरेक्टिव है, आपको डायरेक्शंस बताएगा कि आप इसको ऐसे करो, आपको इसको, लेकिन आप उसको करने के लिए बाउंड अप नहीं हो, उसको करने के लिए आप पर कोई प्रेशराइज नहीं है. The main objective of this principle is to see that any political, social and economic justice should be available to all. मेन इस चीज़ का क्या है कि जो भी है इकोनॉमिक जस्टिस है या सोशल जस्टिस है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए. Such a social structure should be established for the fulfillment of the objectives and the aims of the state. The principle serves as a guideline. तो ये जो principles है ये हमारे लिए guidelines है, हमारे guide है, हमें बताएंगे कि हमें इस चीज़ को कैसे आगे लेके चलना है. There is no provision in the constitution to implement these principles of law. These fundamental principles do not provide any legal support or legal right. इसका कोई लीगल सपोर्ट या लीगल राइट नहीं है, बट दे आर देयर टू गाइड यू अप. देन ऑल्सो द फ्रेमिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ दिस लॉ एंड स्टेट देयर आर फंडामेंटल्स. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, टू रूल द रीजन द प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशंस. किसी भी जगह को आपको रूल ऑन करना है तो वहाँ पर आपको कुछ प्रिंसिपल्स डालने पड़ेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, तभी आप उस फाउंडेशन को आगे ले जा पाओगे. इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ हिस्टोरिकल डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. जब तक हमारे अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आएगी,
हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे, इतना आगे जितना हम सक्सेसफुल करना चाहते हैं हम नहीं कर पाएंगे. The Indian Constitution has included directive principle of the state policy in the 4th section of the amendment. The kind of country that we want to create, the kind of society we want to construct, the vision reflected in this directive policies. कैसी सोसाइटी हमें चाहिए, कैसा देश हमें चाहिए, किस तरह के लोगों का नज़रिया हम चेंज कर सकते हैं, या लोगों को देखने का नज़रिया हम कैसे बदल सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टिव पॉलिसीज़ में मिलेंगी. देयर आर देयर टू हेल्प यू आउट कि आप क्या करोगे जिससे लोगों का सोच बदले, नज़रिया बदले. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली द डायरेक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन to the union and state government to adopt such policies that would help establish an unbased society in our country. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, दे आर देयर टू हेल्प आवर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ऐसी पॉलिसीज एक्सेप्ट करने के लिए हेल्प करता है जो हमारी सोसाइटी को अनबेस्ड या कोई भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक फेयर सोसाइटी हम बना सकें, हमारी कंट्री में एक ऐसा वातावरण हम बना सकें. The primary aim of these principles is to establish a social system based on social, economic and political justice. सब जगह न्याय होना चाहिए, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो. These principles are about the implementation of the objectives and ideas present in the preamble. These principles are not included in the Constitution of India. Constitution इंडिया में ये included नहीं है. These principles do not serve legal rights or legal backing or legal utilization. For the proper administration of the state, these principles are channelized. इसको प्रॉपरली एक में नहीं डाला गया है या स्पेशल अमेंडमेंट्स नहीं बनाए गए हैं इसके लिए. दे आर बीन चैनलाइज, दे आर बीन डिफरेंट वेज उनको लिखा गया कि ये चीज़ को आप इस तरह करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. These principles incorporate such rights as required for the overall development of the mankind. और ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह डाली गई हैं या इस तरह इनकॉर्पोरेट किया गया है. सच राइट्स आर रिक्वायर्ड कि ऐसी राइट्स हमें चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. अगर हमारे कंट्री का हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो इस तरह के राइट्स हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. These directive principles are divided into various sections. Principles related to the economic policy. For the modification of economic policy, there are certain principles which are given below. Economically आप इनको कैसे स्टेबल अप कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. Equal distribution of wealth and resources among all the classes of welfare of citizen. जितना हो सके जो वेल्थ और रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो सारे क्लासेस में, सारे सिटीजन्स में. Assets and production of the resources should be distributed in certain groups of section. This should not be administered by the state. जो assets and the production of resources उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो certain groups में कि this should not administer, वो उसका state administration नहीं करेगा. Equal pay for equal work for both men and women. Men and women अगर equally काम कर रहे हैं, equally pay उनको मिलना चाहिए. Provisions for good health for laborers working as a place should be created. जो laborers काम कर रहे हैं उनके लिए good health for laborers working as a place should be created. उनकी जो जगह है वो इस तरह बनाओ कि उनकी health अच्छी बनी रहे. Because of the financial contractions of men, women and young children working at unhygienic places or where the health matters are retort should be not be allowed to happen. कई जगह ऐसी है जहाँ हाइजीन नहीं है, प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है, तो भी लोगों को काम करना पड़ रहा है. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है इस चीज़ों पर कि अगर उनके काम करने की जगह साफ़ सुथरी और अच्छी रहेगी तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनका काम भी अच्छा रहेगा. State should promote the cooperation and administration of industrial units by laborers. Laborers ज़्यादा से ज़्यादा रखो ताकि काम मिल सके. Promote cooperation in administration of industrial units by the laborers. Protection of children, youth against the exploitation, against the moral and material abandonment, and to live in a healthy and dignified environment. Children को protection दो, youth को protection दो, exploitation से उनका कोई गलत इस्तेमाल ना करें.
एंड डिग्निफाइड, उनको एक डिग्निफाइड, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट दो ताकि वो वहां पर कर सके अपना काम. दीज प्रिंसिपल शुड बी डेवलप्ड बाय द, ये जो प्रिंसिपल है वो स्टेट को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा. रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन्स. वुमेन्स को प्रेगनेंसी के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर कुछ वक्त के लिए उनको लीव देना चाहिए. वर्कर्स इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, गारंटी एंड अदर लीगल शुड बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसी. लोग जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए. उनको दिवाली पे या टाइम टू टाइम उनका बोनस दे सकते हो. मैटरनिटी लीव उनको मिलना चाहिए. ग्रेट्युटी एंड अदर लीगल राइट्स भी उनको वहाँ पर मिलनी चाहिए. To organize agriculture and animal husbandry on the modern and scientific lines, and to prohibit the slaughtering of cows and other useful milk producing cattle, a draft should be drawn for the livestock breed like donkey, bullocks, cows for halting and slaughtering. कई जगह एनिमल्स को मारा जाता है, काटा जाता है, तो उस चीज़ों पर भी रोक टोक लगनी बहुत ज़रूरी है. ऐसा आपको बनाना पड़ेगा कि या उनके ब्रीडिंग पर आपको ध्यान देना होगा. काउज हैं जो उनका अच्छी ब्रीड से आप करोगे तो अच्छा दूध मिलेगा. सो इफ़ यू आर अर्निंग अ गुड ब्रीड मिल्क तो आपको उतना ही आपका इनकम भी बढ़ेगा. हाल्टिंग एंड स्लॉटरिंग प्रॉपरली प्रोहिबिट कर देना. स्लॉटरिंग मतलब एनिमल्स को काटना, दैट शुड बी निकाल देना चाहिए. इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल, जो भी लीगल राइट्स है वो इक्वली सबको मिलनी चाहिए. स्टेट शुड ऑर्गेनाइज द फ्री लीगल सर्विसेज टू डिजायर सिटीजन्स who are financially feeble as well as incapable in getting so. यहाँ क्या बोलते हैं कि स्टेट शुड ऑर्गेनाइज फ्री लीगल सर्विसेज. ऐसी लीगल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करो टू द डिजायर्ड सिटीजन्स हु आर फाइनेंशियली फीबल, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो कोई सर्विस उनको, जैसे कि एजुकेशनल लाइन में भी उनको ट्रेनिंग चाहिए, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट क्रिएट करो जिनमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप ट्रेनिंग दे सको. वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है या वैसे उनमें टैलेंट है बट फाइनेंशियली वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट और द स्टेट शुड कीप सच प्रोविजन दैट वुड हेल्प सच ऑफ द पीपल. प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द स्टेट पॉलिसी. Weaker section of the society, that the scheduled class and the scheduled tribe and the backward classes education and economic rights to be conferred which should be taken in concern by the state. स्टेट को हमेशा ये ध्यान देना है जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको एजुकेशन और इकोनॉमिक राइट्स प्रॉपरली मिलने चाहिए. इट शुड बी द मेन वर्क ऑफ द स्टेट. दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस. उनके साथ सोशली कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इनजस्टिस ना हो. इस चीज़ का भी स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट बी कंसर्न फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, thereby dispersing and administrating justice to all should be taken in the concern by the state. Uniform civil code should be the concern for all citizens of the country. सारे citizens के लिए ये concern होना चाहिए. Thereby dispensing the administrating justice to all which should be taken in concern by the state. तो state को इस चीज़ का पूरा ध्यान देना चाहिए कि सबको equal rights मिल रहे हैं, equal justice मिल रहा है. Steps should be taken for the social justice in the matters of marriage, divorce, adoption, surveillance, assets and properties by the states. Proper steps लेने चाहिए for the social justice in the marriage का है या जो भी है proper चीज़ को follow करना चाहिए. The state should not make provisions for the support and education in matter, rights to employment, old age, illness or incautious situations, poverty, etc. स्टेट को ऐसे प्रोविजंस भी बनाने चाहिए, ऐसी सुविधाएं भी बनानी चाहिए टू सपोर्ट द एजुकेशन इन द मैटर्स, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज सिचुएशंस है या पॉवर्टी है, इन सब चीज़ों को भी स्टेट को प्रॉपरली ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए. प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज. Panchayati Raj should be established by the state, for which the proper leadership officers and financial aid should be provided
टू कंडक्ट द वर्क इन अ फ्री वे। पंचायती राज बनाना चाहिए। फॉर विच द प्रॉपर लीडरशिप होना चाहिए, जो लीडर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ऑफिसर्स जो हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल एड्स, फाइनेंशियल हेल्प भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। द स्टेट शुड नॉट सेपरेट इट्स सर्विसेज फ्रॉम द कॉर्पोरेट mindedness and it should not be in liberty so the judges can be impartial। यहाँ पे क्या बोलते हैं, the state should separate its service from the corporate mindedness and it should be in the liberty so that the judges can be impartial, fearless and courageous in rendering the judgments। यहाँ पर वो ऐसे बोलते हैं कि उनको एक स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करो, इट्स सर्विसेज फ्रॉम द कॉर्पोरेट, जो जजेस होते हैं, जो जजमेंट देते हैं कोर्ट्स में, उनको आप ऐसी लिबर्टी दो ताकि वो कोई भी जजमेंट जब पास ऑन करते हैं वो इम्पार्शियली करें, फियरलेस, बिना किसी डर के करें, और करेजियस। कई बार कुछ ऐसा बड़ा जजमेंट लेना होता है तो उनको उसके लिए काफ़ी डर भी रहता है कि कहीं इसका इफ़ेक्ट उन पर ना आए, ताकि वो अपने जजमेंट्स जो है वो प्रॉपरली दे सके। अगर उनको स्टेट वो इतनी जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे उनको प्रोवाइड करें जिससे वो अपना जो डिसीजन है वो फ्रीली, बिना डर के, बेधड़क अपना सही फैसला सुना सके, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, टू एस्टैब्लिश द फेयर रिलेशन बिटवीन द नेशंस एंड टू इंक्रीज द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स, इसे कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी बनी रहे, फेयर रिलेशंस, जो अच्छे रिलेशंस हैं हमारे दूसरे नेशंस के साथ वो भी बने रहे, और इंक्रीज द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनली भी उनकी रिस्पेक्ट हमें बनाए रखनी है। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसीज। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ 6 to 14 years of age is mentioned in the constitution and it was fundamental right to education। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, the basic education from the age 6 to 14, it is also mentioned in the constitution and it is also given in the fundamental rights of education। To preserve and protect the state heritage, artifacts, monuments, cultural places, arts and buildings, the state should protect the cultural heritage places from the distortion, robbery, ट्रांसमिटिंग, डिस्पोजल एंड डिटोरेशन। तो जो हमारे इंडिया का जो कल्चर है, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, कल्चरल प्लेसेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी, उनको भी प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमारे कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनको ख़राब होने से बचाना है, उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाना है, उधर रॉबरी ना हो, प्रॉपर सेफ्टी वहाँ पर होनी चाहिए। The state should have the aim of preserving the culture and historical legacies। हमारे स्टेट का ये भी एक एम होना चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिकल या जो कल्चरल हेरिटेज या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको हम प्रिजर्व करें। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द हेल्थ पॉलिसीज। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीनिक शुड बी प्रोवाइडेड along with the provisions of the better nutrition and health amenities of the people by the state। तो जो हमारे लोगों को है पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीनिक, जो जगह है वो हाइजीनिक होनी नहीं, साफ सुथरी होनी चाहिए। इट शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द, इट शुड बी ऑल्सो अलॉन्ग प्रोविजंस फॉर द बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एमिनिटीज फॉर द पीपल बाय द स्टेट। प्रॉपरली उनको सब मिलना चाहिए, हेल्दी फूड है, हाइजीनिक जगह है, उनका रहना सहना साफ सफाई होनी चाहिए स्टेट में। Prohibition on harmful drugs, harmful soft drinks and drugs should be done by the state। जो चीज़ें हार्मफुल है, कोई ड्रग्स यानी कोई दवाइयाँ हैं जो हार्मफुल है, उन पर बैन लगाओ। हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जो कई सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसी है जो हार्मफुल है हमारे लोगों के लिए, उस पर बैन लगा सकते हैं। These should be further banned as it will create a healthy hazard for the public। इन चीज़ों पर आपको बैन लगानी पड़ेगी ताकि हमारे पब्लिक को हेल्दी एनवायरनमेंट मिले और अच्छी हेल्थ मिले। टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स देयरबाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, प्रिजर्व करना है,
टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशंस, उन चीज़ों पर भी स्टेट को ध्यान देना पड़ेगा। हाइजीनिक एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन इन द वर्किंग एरियाज ऑफ द लेबरर्स, जहाँ लेबरर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज है, कंपनीज हैं, तो वहाँ जो लेबर्स उनका जो वर्किंग एरियाज है एकदम हाइजीनिक होना चाहिए। दे शुड हैव सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लेजर, लेजर जब भी वो फ्री हैं तभी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट का आप उनको टाइम दे सकते हो। एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, लगातार सिर्फ काम 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 तो क्या होगा, मेंटली आप ज़्यादा थक जाओगे, तो वो मेंटली लेजर या थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत एंटरटेन भी उनके लिए ज़रूरी है। दिस प्रोविजन शुड बी केप्ट इन कंसर्न बाय द स्टेट, इन चीज़ों का भी स्टेट को पूरा ध्यान रखना पड़े। इसलिए हम लोग देखते हैं कई कंपनीज शिफ्ट्स में काम करती है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ताकि जो लेबरर्स हैं उन पर जो काम का लोड है वो एक्सेस ना हो जाए। वो एक साथ इतना काम करेंगे तो क्या होगा, फिजिकली और मेंटली वो लोग थक जाएंगे। Thus, these principles provide guidance to the state to take the lead towards the establishment of equal justice and social order without any exploitation. तो ये जो principles है वो हमें guidelines देते हैं to the state, state को guideline करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं कि किस तरह आप रिक्वायरमेंट है या establish कर सकते हो equal justice and social order. द डायरेक्टर प्रिंसिपल एनहांस द फ्यूचर सोसाइटी, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है वो हमारी फ्यूचर सोसाइटी डिसाइड करेगा। दे गाइड अस टू द डायरेक्शन सो दैट वी कैन लीड टू आवर डेस्टिनेशन, ये हमें ऐसे गाइड करते हैं जो हमने सोचा है हमारा देश ऐसा बने, तो उस अपने देश को इतना अच्छा बनाना है, डेवलप बनाना है, तो उस चीज़ के लिए वो हमें गाइडलाइन देते हैं। द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट, सोसाइटी को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम ऊपर ला सकते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें स्टेट को देखना है। फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप वाइल द डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्सटेंड द स्टेट लीडरशिप। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जो उनकी लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं लिमिट में आ जाती है, वेयर एज द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो है वो आपके इस चीज़ को एक्सटेंड करता है, आपकी लीडरशिप को एक्सटेंड करता है, नहीं इसको और ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा, तो अच्छे के लिए हम कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स मेक द एक्सटेंसिव ऑफ डेमोक्रेसी वाइल द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी एंड फाइनेंस imparts the aim for interrelations of democracy, there is no opposition between them, ये दोनों ऑपोजिशन में नहीं है, they are for the state, they are for the country, बट एक के पास लिमिट ज़्यादा है, एक का है जो वो आपको अनलिमिटेडली हेल्प ऑन करता है किस तरह आप अपने देश को आगे ला सकते हो। बोथ ऑफ देम कम्पीट ईच अदर, आपके पास लिमिट्स है, राइट्स हैं, आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अगेन राइट्स आर समवेयर, दे आर इन अ लिमिट, बट डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं जो पॉलिसीज़ आपको इस तरह देते हैं ताकि आप अपने देश को और अच्छा बना सके, अपनी कंट्री को और अच्छा बना सके। So friends, here we end up with part 2. Thank you.